Yes, sir. I know very well Hindi, but Okay, so now you tell me um, one thing. You tell me one thing. How do you say something like that? कि sometimes you are in a situation where you say ये आम जैसा लग रहा है खाने में, ये आम जैसा लग रहा है. अब I have to speak this sentence in Hindi. Okay, so how do you okay. say this कि ये खाने में आम जैसा लग रहा है? I was asking this thing. Uh, I am feeling. Actually when I eat this thing, that time I feel like mango. अच्छा, ठीक है. और एंड सेकंड सेंटेंस इज ये देखने में तुम्हारे जैसा लग रहा है कि ये देखने Uh, में तुम्हारे जैसा it, लग it, रहा है. it, it is looks like you. It is looks like as you. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट व्हाट यू आर सेइंग. इट इज लुक लाइक as as you. is Sir, look the correct sentence is he's look like you. as you. Yeah, this one is right. I think it's Okay. look like you. And first sentence you told me that it feels like I am eating mango. Sorry, Yes. sir. Hello? What did you say? No, I am saying Mithun told me the first sentence ये तुम कि ये आम जैसा लग रहा है खाने में, तो इन्होंने बोला it feels Okay. like eating mango. Okay? And second sentence I asked him ये दिखने में तुम्हारे जैसा लग रहा है, and answer is it is like it is like look like it is No, no. It is looks like uh, as you. it is looks like Okay. as you. This is the second answer you are giving. And third thing, so Hmm. abhi we are done with taste, we are done with look. अब मैं बोलूं मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं आएगा. So how do we say this? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो I, नहीं आएगा. I am feeling that will be not come. I am feeling that will be not come. Yes, yes. Sir, can I tell you? No. Right now I'm just asking with Mithun. I'll just ask each and everyone separately then. Okay. Okay. ठीक है. So now we are done with looks like, feels like, and think. उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लगती है. उसकी आवाज could you please repeat again? उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लगती है. Her sound like you. Her sound like you. Yes, yes. Okay. ठीक है. So now who wants to correct these sentences if you think that these sentences are wrong? No, actually, my last sentence is incorrect. Okay. Tell me I your last think. sentence again if you want. I said my last sentence was incorrect. अच्छा, your last sentence was incorrect. You think that, right? Yes, yes. Her sound. So No problem. There is no issue. There is no issue with that. If you are saying it wrong, there is no problem with that. The only problem is you don't no, have to actually, be okay. No, no, I'm thinking. Could you please repeat again your last sentence? उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लगती है. So now I have to repeat it in Hindi, ना? Yes, yes. उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लगती है. Okay, that done. Okay, it is done. चलो, no problem. So if anyone is there who wants to correct these sentences, Can I? हाँ, sure, definitely. Sir, he sounds like you. क्या? It's I think it's he sounds like you. His sounds like you. Yeah, he sounds like you. His or he? Sir, he sounds like He you. is and her is He both. it sounds. Okay. Dear sir, that is a girl. Okay, Sir, so it's please the correct. look it. Sir, Yeah, I got your it's a point. correct or not? हाँ, I'll tell you everyone it is correct or not. I know Mithun, it is grammar, but it is in spoken grammar. I'm not telling you about conjunctions. I'm not telling you about prepositions, noun, pronouns. I'm not telling you these things. I'm telling you the real sentences which you come across in your daily life basis. Okay, and these are very common. कि मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है, मुझे खाने में ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है. So these are common sentences, and I am coming up with those sentences which are very common for you to use.
and you can easily use these sentences. So I'm not telling you about prepositions, conjunctions, noun, pronoun, adverb, adjective. No. So these are not grammatical topics. These are the topics which you use in your daily spoken. Okay. And so now Mithun has told us the answer is her sound like you. Aman has told he is sounds like you. Anyone else who wants to try? Yes. Yes, tell me. His voice is sounds like you. His voice is sounds like you. No. His voice is looks like you. His voice. आपने बोला कि उसकी वॉइस उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लगती है. Looks like you. Okay. Anyone who wants to give His a voice looks like you. okay, no problem. I have written it. Anyone is there who wants to give it a try? Chalo. Now I'll give you the answer. The answer which Mithun, Aman, and Satish. The answer is wrong. All these three answers are wrong. Now I'm telling you one thing and understand it very carefully, because this thing will be in your daily life and you will have to face these things on regular basis. So there are 5 senses. Like if I talk about the senses, so we have taste, we have sound, we can see, we can think. So these are some senses. अगर मैं ये बोल कि वो तुम्हारे जैसा लग रहा है, एंड वो लगने का मतलब है दिखना, ठीक है, कि वो तुम्हारे साथ दिखता है, सो वील से ही लुक्स लाइक यू, ही लुक्स लाइक, कि वो तुम्हारे जैसा लगता है, ठीक है। हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं ही लुक्स लाइक यू, वो तुम्हारे जैसा लगता है, लेकिन वी आर कंफ्यूज ऑन दिस टर्म लगना, और हम इस इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होकर गलत सेंटेंसेस बोलते हैं। सो ही लुक्स लाइक यू, वो तुम्हारे जैसा लगता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं उसकी आवाज तुम्हारे जैसी है, या फिर उसकी आवाज तुम्हारे जैसी आती है, सो वो क्या हो रहा है, वो क्या लग रहा है, वो साउंड है, ही साउंड्स लाइक यू। अगर मैं बोलूं वो तुम्हारे जैसा बोलता है, वो अलग चीज होगी, दैट इज स्पीकिंग, लेकिन उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लग रही है, सो मतलब साउंड इज कमिंग, तो ही साउंड्स लाइक यू, साउंड में डस छुप गया एंड इट इज साउंड, ही साउंड्स लाइक यू। मैं बोलूं मेरी आवाज उसके जैसी लगती है, सो आई साउंड लाइक हिम। अब अगर तीसरा सिनेरियो मैं बोलूं कि मैंने कोई चीज टेस्ट की और मैं ये बोल रहा हूँ कि आम जैसा लग रहा है, तो इट टेस्ट लाइक अ मैंगो, वहां पे टेस्ट हो जाएगा, इट टेस्ट लाइक अ मैंगो, तो वो आम जैसा लग रहा है, ठीक है। फोर्थ सिनेरियो क्या हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ, मुझे नहीं लगता वो पार्टी में आएगा, सो व्हाट एम आई डूइंग, ना मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ना मैं सुन रहा हूँ, ना मैं देख रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, आई थिंक ही विल नॉट कम इन द पार्टी, मुझे लग रहा है या मुझे लगता है, तो मैं वहां थिंक कर रहा हूँ, आई थिंक या फिर आई एम थिंकिंग ही इज नॉट गोइंग टू कम इन पार्टी, वो पार्टी में नहीं आएगा, ठीक है। सो ये हम सेंटेंसेस को इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज, मुझे पता था ऐसे सेंटेंसेस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ना ये चीज के सेंटेंसेस अपने आप कहीं लिखिए और उनको बनाइए कि मुझे ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ये भी आम जैसा लगता है, क्या ये भी तुम्हें ऐसा ही लगता है, तो डज इट साउंड लाइक दिस, क्या ये इसकी तरह आवाज करता है, डज इट साउंड लाइक दिस, डज इट टेस्ट लाइक दिस, क्या इसका टेस्ट इसकी तरह है। सो इस तरह से, तो साउंड, टेस्ट, थिंक, लुक्स, हम इन चीजों का यूज करते हैं जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ये आम जैसा लगता है, तुम्हारी आवाज ऐसी लगती है, ठीक। सो अगर मुझे किसी की आवाज लग रही है, सो आई एम लिसनिंग, इट साउंड्स लाइक समवन इज कॉलिंग, ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है, सो इट साउंड्स लाइक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल है, सो आई थिंक ही इज अ मैड गाय, इस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए, पहले मैंने क्या बताया कि ये तुम्हारे जैसा लगता है, तो आंसर ये आया था इट इज लुक्स लाइक एज यू, नहीं, ही लुक्स लाइक यू, ये तुम्हारी तरह लगता है, ही लुक्स लाइक यू। दूसरा क्या था कि ये आम जैसा लगता है, इट फील्स लाइक ईटिंग, बिल्कुल गलत है, इट टेस्ट्स लाइक, टेस्ट के आगे आप एस लगा दीजिए, इट टेस्ट्स लाइक मैंगो, ये आम जैसा लगता है। थर्ड था कि मुझे लगता है वो नहीं आएगा, सो आई थिंक ही विल नॉट कम, यहाँ पे आंसर क्या दिया था, आई एम फीलिंग दैट ही विल नॉट कम, नहीं, आई थिंक ही विल नॉट कम, कि मुझे लगता है वो नहीं आएगा। फोर्थ क्या था, उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लगती है, आंसर्स क्या थे, हर साउंड लाइक यू, गलत, ही इज साउंड्स लाइक यू, गलत, हिज वॉइस इज लुक्स लाइक यू, बिल्कुल गलत।
सिंपल सा आएगा, उसकी आवाज तुम्हारी जैसे लगती है, ही साउंड्स लाइक यू। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो, ठीक है, अगर मैं किसी इंसान को बोल रहा हूँ कि यार तुम ऐसा लग, तुम्हारा बोलना ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो, सो यू साउंड लाइक अ बार्किंग डॉग, कि मतलब तुम्हारी आवाज ऐसी लगती है जैसे कुत्ता भौंक रहा है, सो यू साउंड लाइक, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे डांट रहे हो, ठीक है, सो इट फील्स लाइक, वो मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मुझे डांट रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे डांट रहे हो, इट फील्स लाइक यू आर स्कोल्डिंग मी। सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे। सो आई होप समझ में ये चीज आई होगी। सेंटेंसेस बनाओ, Yes, अगर sir. कोई कंफ्यूजन आती है, कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, क्वेश्चन वाले बनाओ, इंटेरोगेटिव्स, नेगेटिव्स, आपको जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो बनाओ, क्योंकि एक एक चीज ऐसे ही धीरे धीरे सही करते रहोगे तो आपकी जो ग्रामर है वो स्ट्रांग होती रहेगी। ठीक है, और आपकी जो Really, sir, that was very fantastic explanation. yes, I totally agree with you. Sir, actually, I wanna say you something, so just tell me. listen to me, please, for few minutes. Sure. Okay, sir. After that, this meeting, could you please give me task on this basis? I'll do one I thing. would I'll just like drop. to happy. I'll drop some kind of task Mhm. like regarding this, which will be related to this topic. I'll just drop a task in the group. Okay. So you all can pick up that Okay. and you all can work on. Okay, sir. Okay, sir. Where you will be send? I mean, in meeting or in group? In group. In group. I'll just share that. Hello. 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 Okay, 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 okay. Thank you, sir. I understood. So in group, I'll share Hello. that. You all can work on that. Okay, okay. I will be happy to clear. If anyone is having any doubt related to this thing, he or she can ask. Sir, could you please repeat again last sentence? ठीक है, लास्ट सेंटेंस वाज उसकी आवाज तुम्हारे जैसी लगती है, ही साउंड्स लाइक, ठीक है, साउंड्स लाइक तो मतलब आवाज सुनने में लग रही है, मुझे अगर देखने And में what is it? Okay. Please translate. Okay, okay. Okay, sir. His sounds like, right? हिज नहीं, ही He. हाँ, ही Okay, but sir, I think, but here is we should use Sina नो, अगर मैं लड़की or मैंने लड़की के बारे में बोला है, लड़के के बारे में बोला है, उसका तो मैंने कोई जेंडर मेंशन ही नहीं करा। okay, अगर okay, अगर मैं okay, बोलूं कि okay, okay. अगर मैं Now I बोलूं understood. पूजा की आवाज तुम्हारे जैसे लगती है, फिर मेरे सामने कोई लड़की खड़ी है, मैं तब कह रहा हूँ कि उसकी आवाज, तो आई विल से हर, लेकिन मैंने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, यू कैन से हर और यू कैन से हिज, वो दोनों ठीक है, लेकिन जो आगे का स्ट्रक्चर था वो गलत था ना। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Okay, okay, fine. गुड इवनिंग। Okay. How are you, sir? हाँ, हेलो, How are you, sir? या आई एम गुड, हाउ आर यू? I am also good, sir. So your name is Dolly, right? Yeah. Okay, and where are you from and what do you do? I'm from UP and I am in Bihar. Okay, Yeah. okay. So did you listen whatever the topic was going on, what I was saying, or what was the lesson I gave today? Did you listen that? No, sir. I don't know Okay. about any topic. Anyone is there who can explain this thing? I'm not saying to explain the answers also. आप सिर्फ उस बात को explain कर सकते हैं जो मैं बता रहा था, सिर्फ question. If anyone wants. Yeah. Yes, sir. I can explain this. Sure. So you just explain to Dolly what was the topic which was going on. Okay, Yeah. actually, Dolly, we were talking about that regarding to some sentence which previous sir told. So, sir, could you please tell again your sentence in Hindi?
I will try to translate in English. Yeah. डॉली मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा था जहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये लग रहा है या फिर लगता है। जैसा मैं बोलूं कि Yeah. इसकी आवाज तो अमिताभ बच्चन जैसी लगती है, इसकी आवाज तुम्हारी जैसी लगती है, इसका जो टेस्ट है Yeah. ये खाने में Yeah. अच्छा लगता है, ये दिखने में तुम्हारे हाँ। जैसा लगता है। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं? सो दिस वाज द टॉपिक। Okay. Okay, Dolly. So first of all, I would like to ask you: are you able to translate of this all? I mean, all those sentence, whatever Mr. Trivesh sir told. डॉली आपको क्या लगता है कि हाउ कैन वी Mithun, sir, I downloaded your video, but I didn't try it at time. Yeah, I saw your video, but I downloaded your video, but I didn't try it this time. Sorry. नो प्रॉब्लम। Sorry for that. Actually, we are talking about that some spoken sentence. Okay, we are not talking about that any Okay, video okay. or anything. Okay, now we are talking about that Yeah, some I sentence know. which Sentence. Mr. Yeah. told. Okay, so please try to listen. Okay. ओके सो डॉली लाइक Okay. दिस वर्क्स लाइक ऑन सेंसेस। ये सेंसेस के बेसिस पे काम करता है। सेंसेस का बेसिस मतलब क्या हुआ? अगर मुझे किसी की आवाज सुनने में किसी के जैसी लगती है सो इट मींस वहां साउंड का यूज होगा। अगर कोई चीज मुझे देखने में किसी की तरह लगती है वहां पे लुक उस चीज का यूज होगा। कोई चीज मुझे अगर सोच के लग रही है तो वहां पे अंडरस्टैंड का भी यूज हो सकता है। अगर मुझे महसूस हो रही है तो मैं फील का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि Feeling. Yeah. Right, sir. हाँ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखे हैं मैंने बोला कि ये तुम्हारी तरह लगता है, मतलब ये तुम्हारी तरह दिखता है। वो लगने का मतलब क्या है? तुम्हारी तरह दिखता है, तो ये तुम्हारी तरह Yeah. लगता है। सो ही लुक्स लाइक यू। Yeah, sir. Yeah. I can use seems or appear. I can use नो नो can use Sorry or for- ears. ये सेम Sorry for interrupt, Dolly. Hello. हाँ हाँ Yeah. गो अहेड। Sorry for interrupt, Dolly. Actually, if you don't mind, would you like to listen to me, please? Now you are Okay. using Okay. earphone. Now you are using earphone. Yeah. So please try to make some distance. No, actually not. Because You your are- Okay. mic, you just keep your mic little bit far from your mouth. Okay. Actually, your Yes, exactly right. हाँ Okay, sir. Thank you. yes. So appear और see, Can you hear me, sir? Can you hear me? we can very clearly hear you. And Okay, sir. it is like we can clearly which was needed, na more than that. Yeah. actually it's too loud. Actually, it's too loud. It is way clear. So you do one thing, just try to maintain some distance between your mouse and the speaker, like your mic, na. So keep it a little bit far from your mouth, and then your voice will be okay. Yes, exactly right. Okay, Yes, sir. okay, sir. And now it is Okay. a bit fine. Now it is fine, Dolly. Okay, now it is fine. Okay. हाँ so Okay. I was saying Dolly, देखिए सीन्स का मतलब क्या होता है? सीन्स का मतलब किसी का दिखना नहीं होता। ही सीम्स लाइक यू, वो बिल्कुल गलत है। Yeah. सीम्स Pratik. Yeah. सीम्स ज्यादातर यूज होता है इट के साथ। इट सीम्स लाइक समवन इज कॉलिंग, ठीक है? मतलब वहां सीम्स भी लगने में Yeah. हो सकता है, लेकिन ऐसा वो फील के अंदर ही आएगा। वो फील के अंदर ही आएगा। इट सीम्स लाइक समवन इज कॉलिंग, ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है। अगर मैं बोलूं ही सीम्स लाइक यू, वो बिल्कुल गलत है। ही लुक्स लाइक यू, ठीक है? और अपीयर का मतलब Okay, I agree with you. अपीयर का मतलब होता है, इफ आई टेल यू इन शुद्ध हिंदी, अपीयर का मतलब प्रकट होना, एकदम Yeah. सामने आना। Yeah. प्रतीत होना और प्रकट होना। बिल्कुल बिल्कुल। सो Yes, वो कोई तुम्हारी तरह लग रहा है तो वो तुम्हारी तरह प्रकट नहीं हो रहा। अगर मैंने एक तरीके से एंट्री ली, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने स्टेज पे एक एंट्री ली, सेम मेरी तरह ही किसी और ने भी एंट्री ली, तब मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ ही अपीयर्ड लाइक मी, मतलब उसने भी मेरी तरह ही आया, वो भी मेरी तरह ही प्रकट हुआ, Yeah. ठीक है? लेकिन अगर मैं वैसे बोलूं कि मेरी तरह दिखता है, मेरी तरह लगता है, Yes. वहां और अपीयर नहीं आएगा, ठीक है? एक चीज थर्ड, ये चीज और अच्छी आपने यहाँ ऐड Okay, sir. Thank you. हाँ, एक होता है अपीयरेंस, ठीक है?
अपीयरेंस। अब अपीयरेंस क्या होगा? अपीयरेंस का मतलब Yeah. हाँ, कि मतलब कोई कपड़े पहने हुए या फिर कुछ भी किया हुआ कि मैं इसकी तरह दिख रहा हूँ, सो वहां पे होती है अपीयरेंस, कि उसकी जो अपीयरेंस है वो मेरी तरह है। लेकिन अगर मैं किसी को वैसे बोलूँ कि तुम्हारी तरह लग रहा है, सो वो लगना इस चीज में नहीं आता है, ठीक है? वो प्रकट होने में अपीयर आता है और सीम्स आपका फील होने में आता है, ठीक है? Yeah. Sure. Right, sir. अब Thank सेकंड, हाँ, अब you, sir. सेकंड सेंटेंस था कि ये आम जैसा लग रहा है। जैसे मैंने कोई चीज खाई और मैंने बोला कि ये आम जैसा लग रहा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? Yeah. एनीवन It वांट? is looking like. नहीं, लुकिंग लाइक देखने में लगेगा, ठीक है? मुझे तो वो टेस्ट Sir, करके, sir, can I tell you? हाँ, श्योर। Sir, it feel like mango. So it feel like, sir. नहीं, वो चीज हमें टेस्ट करके लग रही है, टेस्ट करके लग रही है, सो इट लाइक लाइक, टेस्ट के बाद आप एस लगा देंगे। It's like. हाँ, इट टेस्ट लाइक मैंगो। कोई चीज मुझे देख के लग रही है, सो लुक्स लाइक। कोई चीज मुझे सुन के लग रही है, Yeah. ठीक है? Okay, sir. Sure. आम Okay. मुझे कैसे, वो मुझे आम कैसे लग रहा है, वो मुझे टेस्ट करके लग रहा है, ठीक है? सो वहां पे Yes, sir. Okay, sir. Got it. हाँ, तो वहां पे Yes, sir. I got. हाँ, ठीक है? अब अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई परफ्यूम लगाया, एक हमारा सेंस है स्मेल, ठीक है? और मैंने आंसर भी बता दिया। Yes, sir. मान लीजिए मैंने कोई परफ्यूम लगाया, मैं किसी के सामने से निकला और मुझे कोई इंसान ये बोल रहा है कि यार गुलाब के फूलों की तरह लग रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह लग रहा है। अब वो क्या होगा? लाइक बिल्कुल, इट स्मेल्स लाइक, ठीक है? इट स्मेल्स लाइक रोजेस, ठीक? तो ये लगना होता है It ना। हाँ, बताओ। it smells like rose. नहीं होता, इट स्मेल। जब आप इट के साथ डू या डज का यूज कर रहे हैं तो इज नहीं लगता, ठीक है? So it smells like हाँ, it. इट स्मेल्स लाइक रोजेस, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि Yes, sir. ऐसा लग रहा है कि बाहर लड़ाई हो रही है, तो अब मुझे अगर शोर से लग रहा है, फॉर हाँ, अगर मुझे शोर से लग रहा है तो इट साउंड्स लाइक। अगर मुझे फील करके लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है बाहर लड़ाई हुई है, इट फील्स लाइक। तो हम ऐसे यूज करते हैं। अगर शोर से लग रही है तब साउंड्स, मुझे महसूस हो रहा है तो फील्स, ठीक है? अब एक चीज और होती है कि मान लो मैंने आपको हल्का सा मारा, मैंने आपको हल्का सा पेन से मारा, लेकिन आपको लगा बहुत जोर से, तो आपने मुझे बोला कि यार ये तो बिल्कुल हंटर की तरह लग रहा है। मतलब मैंने पेन से मारा लेकिन आपने बोला कि ये हंटर की तरह लग रहा है, सो इट हर्ट्स लाइक, ठीक है? वो भी एक फीलिंग है, वो एक सेंस है, इट हर्ट्स लाइक, ठीक है? तो ये इसकी तरह लगता है, इसकी तरह चोट पहुंचाता है। तो हम इस तरह से यूज करते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अलग अलग सिनेरियोज में ऐसे सेंटेंसेस को लीजिए, उनको यूज कीजिए जितने ज्यादा हो सके। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चंस जो है ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपका ये पक्का हो जाएगा। और ये चीज मैंने क्यों आपके लिए चूज करी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है जो हम बोलते हैं हमारे डेली बेसिस पे, ठीक है? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। सो आई फील, Okay, thank you. राइट? Right, sir. ठीक है? एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर ठीक है, तो क्योंकि अभी शायद ये मीटिंग का टाइम भी अभी ओवर होने वाला है। हाँ, yes, sorry. अच्छा, पूजा कर, आई थिंक। हेलो, पूजा Sir, if I want to say one sentence, if there any mistake, please correct it. It feels like you get bored. Is it correct? yeah, your voice is not audible, it's cracking. Speak loudly. It feels like your networks are not coming properly. Okay. Feels like there is some issue with your network. It sounds like someone is whispering. ऐसी आवाज आ रही है ना, कोई फुसफुसा रहा है, so it sounds like. यस सर हाँ, तो हम ऐसे बोलते हैं, sounds like someone is whispering, sounds like someone is eating. ऐसी आवाज आ रही है, कोई कुछ खा रहा है। Sir,
now my voice is clear. हाँ Yes, sir. pretty much. Yes, yes. Okay, it sound from Yes, Pooja, you can say, we can hear you, you can tell your question. So I want to say sentence related to whatever you explained Mm-hmm. us. It feels like you get irritated. The sentence is correct or not? It feels like. Yeah, right. Like it feels like you get irritated. The sentence is correct or not? Your sentence is, it feels like you got irritated. right. Hello? Pooja, your sentence is, it feels like you got irritated. Yes, sir. हाँ, so sentence is correct. Yes, अगर means अगर आपको आपको वो चीज महसूस हो रही है, वो आपको ना तो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, अगर वो चिल्ला रहा होता तो साउंड्स लाइक हो जाता, आपको सिर्फ महसूस हो रहा है कि उसके हाव भाव से, उसके बात करने के थोड़े टोन से, सो वो फील होगा, सो इट फील्स लाइक, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब एक चीज बताइए, अब सब बताइए, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं आऊंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं आऊंगा? Why are you think may not come? एक मिनट, क्या है आंसर? Why you feel that I will not come? एक बार दोबारा बताइए। why do you Why you feel Why do Not- you feel? not come? I will not sorry come. why do you think like I will not come? एक मिनट Sir, can you repeat the sentence? एक मिनट मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ और मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताए, ठीक है? सेंटेंस ये है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं आऊंगा, ठीक है? सेंटेंस है ये। अब एक जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। सतीश आप बताओ। So why are you think I will not come? ठीक है, पूजा आप बताओ। Why you feel that I will not come? नहीं, दोबारा आवाज कट गई आपकी। Why you feel that I will not come? Why you feel that I will not come? ठीक है, मिथुन आप बताओ। Why do think I will not come? Why? Why do think I will not come? Why do think? Yes, why do think अच्छा, why I will not come? I will not come. Anyone else who wants to give it a try? Why? I don't What know do the you answer. think? What do you think I will not come? What do you think? Yeah, तुम क्या लगता है? अच्छा, सामने होते ना तुम सब में लगता है ना, अगर तुम सब सामने हो What, तो तुम sir? सब में लगता। सौरभ आप बताओ। No. सौरभ I don't know the answer, sir. Why do you confused. think? Yeah. so you don't know Why the, do you think I will not come? ठीक है, और कौन बचा? Hello. हेलो, Yeah. शोर कहाँ से आता है? Hello. हेलो, Why do you think Mhm. I won't come? why do you think? Why do you think? I won't come. I won't come. ठीक है, I won't come. I won't. Why do you think I will not come? I don't. I won't. Yeah. I won't. Won't. Will not. I think. Will not. ना, I won't. ठीक है, Yeah, sir. Yeah. okay.
Sir, correct answer will be why do you think and that I will not They will. ठीक है, why do you think I will not come? Why do you think I will not come? बिल्कुल, तो सही सेंटेंस यही है, why do you think I'll not come, या फिर अगर won't भी बोलोगे तो भी Sir, चलेगा। हाँ हाँ, Okay, sir. तो जो सही सेंटेंस है वो यही है। अब जो which means sir which means sir what I told that was right. हाँ, जो आपने जो अभी एंड में बताया, योर सेंटेंस वाज व्हाट व्हाई डू यू थिंक आई विल नॉट कम, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, अभी प्रमोद सर ने भी जो आंसर दिया था व्हाई डू यू थिंक आई वोंट कम, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म इज वोंट, सो वी कैन यूज वोंट आल्सो। व्हाई डू यू थिंक दैट आई वोंट कम, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब जो मुझे प्रॉब्लम है सतीश, योर आंसर वाज व्हाई आर यू थिंक आई विल नॉट कम। सतीश, एक चीज आप अच्छे से याद रखो, if we are using is am are, so mostly you will see कि वो present continuous sentence पे use हो रहा है। continuous means anything which I am doing right now, I am teaching, ठीक है, so I am teach, no this is incorrect, I am teaching, you are listening, तुम सुन रहे हो, you are listening, you are writing, so ऐसी चीजों में ना आप आंसर ज्यादातर यूज करोगे। या फिर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मीन्स मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तुम स्टूडेंट हो, यू आर, ऐसे। लेकिन जब सेंटेंस अलग आता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मतलब कैसे भी, अगर मैं आपको एक ग्रामेटिकल टर्म में बताऊं तो अगर ज्यादातर सेंटेंसेस जहां पे आपको एंड में ता है ती है मिलेगा, कि ऐसा होता है, मैं जाता हूं, वह खाता है, ये लगता है, सो दीज सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, आपको डू और डज का यूज करना है, ना कोई आईएनजी लगेगा, ना कोई फॉर्म चेंज होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ डू और डज का यूज होगा। आप डू लगाओगे आई वी दे, इनके साथ आप डज लगाओगे ही शी, या फिर कोई नाम है राहुल मोहन सोहन। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है या फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो। सो क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक, तो डू लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यू का यूज हो रहा है, यू का डू लगेगा। व्हाई के बाद आएगा जो हमारा वर्ब है, तो वर्ब है डू, व्हाई डू, फिर आएगा यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज बाहर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, सो डू या डज छुप जाएगा एक्शन, और अगर डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर डज छुपेगा तो ऐसे ईएस लग जाएगा। मैंने बोला मैं सोचता हूँ, मैं कौन है, मैं है नॉन सिंगुलर, मतलब प्लूरल, इसमें डू लगेगा और डू छुप जाएगा, क्यों छुप जाएगा, क्योंकि ना तो नेगेटिव सेंटेंस है ना क्वेश्चन सेंटेंस है। सो आई थिंक, डू छुपा, एक्शन में कोई चेंज नहीं है, वह सोचता है, ही थिंक्स, एस लग जाएगा क्योंकि डस छुपेगा, ठीक है, ही के साथ डस का यूज होगा, ही थिंक्स। अब मैं यहाँ बोलूं वह नहीं सोचता है, तो ही डज नॉट थिंक, क्योंकि डस तो बाहर आ गया, बाहर आया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस, Think. Yes, sir. ठीक है। तुम क्यों सोचते, मतलब वह क्यों सोचता है, वाई डज ही थिंक, क्यों थिंक हो गया, क्योंकि डज बाहर आ गया, क्यों बाहर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है। अब अगर क्वेश्चन सेंटेंस में मैंने ये बोलूं मैं सोचता हूँ आई थिंक, तो मैं के साथ डू लगेगा, डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक, थिंक का थिंक ही रहेगा। मैं क्यों नहीं सोचता हूँ, वाई डू नॉट आई थिंक, या फिर वाई आई डोंट थिंक, तो मैं क्यों नहीं सोचता हूँ, थिंक ही रहेगा, क्योंकि डू बाहर है और डू अंदर भी होगा तो भी सेम रहेगा। मैं सोचता हूँ आई थिंक। तो इस चीज की भी आप हल्की से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज बहुत, देखिए टेंसेस, मैं बोलता हूँ टेंसेस बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि आप पीछे भागो, मत भागो, लेकिन टेंसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप अपने आप को 4 या 5 साल के लिए अमेरिका में शिफ्ट कर लो, तो आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। सेकंड तरीका ये है कि आप बेसिक्स को समझो और उनको यूज कर आगे अपने प्रैक्टिस। तो आज आपको ये डू डज का बेसिक समझना है, डू डज का बेसिक समझ के अपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं अगर अच्छा अब सतीश आपको एक आंसर देना है, वह जाती है, वह जाती है, या फिर वह जाता है। Please go. हाँ, She goes. She goes. देखो She सतीश, goes. He goes. मैंने She goes.
इज एम आर वहां यूज करेंगे जहां अभी के चलने की बात हो रही है, मतलब रहा है, रही है। मैं बोलूं वह जा रही है, she is going। मैंने बोला वह जाती है, तो she goes। अगर साहती है आया एंड में, डस छुपेगा she के साथ, और डस किस में छुपेगा? एक्शन में। एक्शन क्या है? जाना। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और बता, वह नहीं जाती है। सतीश आप ही बताना, वह नहीं जाती है। She not टेक go. योर टाइम, आराम से सोच के बता। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वह जाती है, शी गोज। गोज क्यों है? क्योंकि डस होता है। नेगेटिव सेंटेंस होगा या क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा तो डस बाहर आ जाएगा। तो शी Yes, गोज yes, नेगेटिव क्या होगा? she not go. हाँ, Yeah, She does not not go. go. शी डज She नॉट does गो। not go. क्योंकि देखो Right. क्वेश्चन वाला सेंटेंस आया तो डस बाहर आ Sir, गया। can sir Not sir She can you doesn't repeat go. the Yeah. sentence? does not go is right. हाँ, she does not go। She doesn't go. Yeah. She doesn't go, you can say she doesn't go also। Yeah, sir. Yeah. Right. Sir, can you हाँ, repeat the sentence? वह जाती है, she goes। वह नहीं जाती है, she does Yes. not go। She don't goes. She don't go. She don't go. डू यूज आई, वी, यू और दे के साथ। यहाँ सिंगुलर है, ही, शी या फिर कोई नाम आ रहा है, वहां डस का यूज होता है। Yes. मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। सिंपल है। Sir, I tell you, she don't go. She don't go. शी डज नॉट। जो अभी आप जो ये आजकल You're सॉन्ग singular, that's why जो आजकल सॉन्ग्स आ रहे हैं, शी डोंट नो, और बल्कि आप जो इंग्लिश सॉन्ग्स है ना, मैं आपको इंग्लिश सॉन्ग भी बता सकता हूँ जहाँ पे यूज होता है ही डोंट लव मी। ही और शी के साथ डू का यूज हो रहा है, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। ठीक है, तो ही और शी के Okay. साथ आप डू, मतलब Yes, आप sir. do का Yes, sir. I like that. Hello. Hello. हेलो। Yeah. Hello. Sir, sir, to speak in English na that time we do you do is sorry of what do you do of what you do. Hmm. Hello. Hello. व्हाट आई Yes, yes. मतलब जब हम इंग्लिश बोलते हैं उस समय कभी कभी व्हाट डू यू डू को व्हाट यू डू भी बोल देते हैं ना। हाँ बिल्कुल बोल देते हैं। हाँ तो सर एक्चुअली ये ग्रामेटिकली सही तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फिर है। भी हम यूज करते हैं। जैसे जैसे आप बात की जाए तो वना है यदि एक ऑफिशियल रूप से बात की जाए और एक प्रोफेशनली रूप से, तो वना यूज करनी नहीं चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Sir, wanna means want to, no? Want Yes, to, no? Yes, yes. yes, Yeah. wanna means want to, but Yeah. Gonna means go to. हाँ yes, Yeah. still- Right. but Yeah. still we use. Why? Because I mean English speaking is not a subject. English speaking is an art, and if you are learning any art, which means you are learning culture. Is it right? बिल्कुल। आई ऑलवेज से कि इंग्लिश, Yeah. Right. Right. एक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ओनली, कि जैसे आपने अपनी लैंग्वेज सीखी है, सो हाउ डू वी लर्न हिंदी? हमने हिंदी किस तरह से सीखी? वी वर यंग, वी वर लिसनिंग, वी वर स्पीकिंग। हम गलत बोल रहे थे, हमने उनको सीखा, बोलते गए बोलते गए बोलते गए, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने बोलना शुरू कर दिया। सेम गोज विद इंग्लिश। लेकिन व्हाट वी हैव, देयर इज अ प्लस साइन एंड अ नेगेटिव साइन आल्सो। प्लस साइन क्या है? हमें हिंदी इसलिए आई क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में ही थे कि चारों तरफ हम हिंदी सुन रहे हैं। बट एज आई टोल्ड यू, देयर आर, Yes, sir. कि आपको अपनी इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। ईदर यू कैन ट्रांसफर योर सेल्फ फॉर 5 or 6 years, कि आप अमेरिका चले जाएं या फिर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे इंग्लिश ही बोलनी है, और यू कैन लर्न बेसिक्स। अब बेसिक्स क्या होता है? बेसिक्स यही है कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए, उनको यूज कीजिए, उनको बार बार यूज कीजिए, 4 या 5 बार। हो मिस्टेक होगी, उसके बाद Yes, sir. जो सीखे हैं उसे यूज करते रहें सर ना, बिल्कुल तब बिल्कुल। ज्यादा बेटर होगा। यस सर। तो जो आप सीख रहे हैं उसको भूलिए मत, उसको यूज करते रहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है यस सर। यस सर। कि सिखाई आपको मैंने कुछ भी सिखाया, हो सकता है कि आप 4 दिन के बाद भूल जाओ कि मैंने क्या सिखाया। भूल जाए। यस सर, जब नहीं यूज करेंगे तो भूल जाएंगे। एब्सोल्युटली। यस सर।
So you need to use all these things daily. सतीश आपको तो बिल्कुल, अगर आप चाहो सतीश तो you can directly call or message me. तो sentences लिख सकते हो साहित्य है के ऊपर कि तुम क्यों करते हो, तुम क्यों जाते हो, वह क्या करता है, आप इसके ऊपर 5-10 sentences लिख सकते हो. And if you want you can send me personally, I'll go through that. मैं चेक करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कितने सही है, क्या गलती है. So you need to work on this. हर चीज में is am Yes, sir. आप हाँ कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है, आप उसको अभी साइड में रखिए. अभी आप ये चीज रखिए कि आपको सिर्फ एक ही तरह के सेंटेंसेस आते हैं, वो है तातीय वाले. मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, वह क्या करता है, वह क्यों नहीं करता है. आपको सिर्फ यही सेंटेंस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ. और आपको इसमें डू और डस का यूज करना है. डस छुपेगा, इस एस या ईएस लग जाएगा एक्शन में. डस बाहर आएगा, ऐसे एस हट जाएगा. डस किसके साथ आएगा, ही शी या किसी के नाम के साथ. आई वी यू दे के साथ डू आएगा और डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं होगा. मैं जाता हूँ, आई गो. डू छुपा, गो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. वह जाता है, ही गोज, ही के साथ डस आएगा, डस छुपेगा तो गो का गोज हो जाएगा. मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो. डू बाहर आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है. वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो. डस बाहर आ गया तो गो, गोज का गो हो जाएगा क्योंकि डस बाहर आ गया. तो Yes. ये छोटा सा एक लॉजिक है. आप छोटे से लॉजिक नहीं समझ में आता है, यू कैन पिंग मी, यू कैन कॉल मी whenever you want. I'll just let you know what you need to do. But keep working on this. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. It will take Yes, sir. Yes, sir. some Yes, time, but definitely come up with this. ठीक. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो गाइस, आई थिंक अभी काफी देर हो चुकी है, 1 घंटा हो गया है. जूम मीटिंग अपने आप शायद डिस्कनेक्ट ना हो जाए. तो आपको मैं जो सेंटेंस था वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. कोई प्रॉब्लम है हाँ हाँ ओके फाइन. Okay, sir.